Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. Welcome to the second session of our free video series of innovation and entrepreneurship, which is going to be asked for your CMAT exam. In the second session, we are going to cover business terminology. So first session was also on business terminologies. Second session is again on business terminologies itself. Okay? If you want to join us for CMAT crash course, we are providing it in classroom mode in Pune. We are providing it in online mode. If you want to purchase only the recorded sessions, we can do that as well. If you want to purchase only books for CMAT, we have that as well. If you want to have the test series for CMAT, you can have that as well. You can connect with us through YouTube, Facebook, Instagram. We'll also be posting our WhatsApp numbers in the description. You can connect with us through that. Okay. So now let us start with the actual business terminology that we have. What finance agency was created by the 1944 Bretton Woods annexed negotiations? So World Bank was created by 1944 Bretton Woods annexed negotiation. Okay. Security under surveillance for some reason are said to be on what? है ना, तो वो lucky list है ना, security under surveillance मतलब क्या है? You make a watch list ना, है ना? If you have a Zerodha account or if you have a Upstox account, you keep some securities to check again and again. So you are keeping them in watch list. ठीक है? Which of these might be a friendly potential buyer be called? है ना? तो definitely not wicked witch. है ना? We are talking about friendly potential buyer. है ना? So wicked witch अभी friendly भी बोल रहे, potential buyer भी बोल रहे. Now let us eliminate the options जो इस category में नहीं बैठेगी. Wicked witch बोलेगी क्या? Friendly and potential buyer. Witch भी नहीं बोलेगी, wicked भी नहीं बोलेगी. ठीक है? White knight शायद बोल सकते हैं. Majority stockholder is already मतलब वो majority stockholder है. It does not mean कि वो friendly potential buyer रहेगा. या silent partner भी नहीं रहेगा. आंसर हैज टू बी व्हाइट नाइट. फ्रेंडली पोटेंशियल बायर हम किसको बोलेंगे? व्हाइट नाइट को बोलेंगे. व्हाट डज LIFO स्टैंड फॉर? LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये तो आपको पता ही होगा, है ना. LIFO स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो सपोज करो एक ऐसा बॉक्स है, इसमें आपने आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी डाला, है ना. तो सबसे पहले क्या आया? सबसे लास्ट में क्या आया? आइटम डी. अभी मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? आइटम डी, है ना. तो ये लास्ट इन था और फर्स्ट आउट था. ठीक है ना. मुंबई लोकल में अगर आप ट्रेन में बैठोगे, सबसे एंड में एंटर करोगे, तो सबसे पहले आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, बिकॉज दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. एंड फीलो क्या रहेगा फिर? फर्स्ट इन लास्ट आउट. फीलो क्या रहेगा? फर्स्ट इन लास्ट आउट. दिस इज फर्स्ट इन, दिस इज लास्ट आउट, है ना. पूरा बाहर निकालने के, तो ए लास्ट में आउट है. If you have a skip day settlement, how many extra days were required? One extra day. And a skip day, there is only one day you are skipping. So that is your skip day settlement, and only one extra day you get. A stock losing value might be called a what? Stock losing value might be called what? Balloon fund, पता नहीं. Sinker fund, शायद लग रहा है मुझे, है ना. हाई प्रॉफिट फंड रहेगा क्या? इट इज लूजिंग वैल्यू. नहीं. वेटेड फंड रहेगा क्या? नहीं. आंसर सी एंड डी में तो नहीं रहेगा. कंफ्यूजन आपको किस में होगा? बलून फंड एंड सिंकर फंड. तो आंसर इज सिंकर फंड. बट देन दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट. एंड ऐसा कंफ्यूजन, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहा तो भी मार्क करके चलो, क्योंकि यू विल गेट मार्क्स ओनली इफ यू टेक द रिस्क, है ना. मतलब 100 में से अगर आप 85 क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाले हो, तो फिर क्यों ही दे रहे हो सीमेट का एग्जाम? यू आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग फॉर द कट ऑफ, है ना. तुमको 100 में से 70-80 क्वेश्चन सॉल्व करके आना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इन लोन सिंडिकेशन हु शेयर्स अ लोन? बैंक शेयर्स. बैंक दे
शेयर द लोन, है ना। लोन सिंडिकेशन मतलब अभी मान के चलो कि मेरे को 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं 500 करोड़ स्टेट बैंक से लूंगा, 200 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से लूंगा, 300 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक से लूंगा। सो दिस इज लोन सिंडिकेशन। ठीक है। व्हाट इज द पोस्ट ऑन द फ्लोर, व्हाट आर द पोस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड? पोस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड ट्रेडिंग पोस्ट। ठीक है ना। अभी ये नाम है, अभी ट्रेडिंग पोस्ट कहते हैं, पोस्ट ऑन द। अभी द थिंग वाज व्हाट आर ट्रेडिंग पोस्ट, उसका डेफिनेशन बताओगे शायद याद नहीं रहेगा। व्हाट आर द पोस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ट्रेडिंग पोस्ट। व्हाट डज नेक्सस मीन? नेक्सस मीन्स कैश फ्लो तो नहीं होगा, सम ऑफ एसेट्स नहीं होगा, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होगा, अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, है ना। अ सेट ऑफ कनेक्टेड थिंग्स, है ना। स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाला जो आया था, सोनी लिव पे आया था शायद, उस पे क्या है, नेक्सस रहता है ना, ये फॉरेन बैंक्स का नेक्सस रहता है बोलते हो, है ना। फॉरेन बैंक्स का नेक्सस रहता है, तो अभी फॉरेन बैंक्स का नेक्सस रहता है मतलब क्या, वहां पे सब चीजें कनेक्टेड रहती, ठीक है। अ सेट ऑफ कनेक्टेड। व्हाट इंडिकेट्स अ विलिंगनेस टू सेल एट अ गिवन प्राइस? ओपन बुक तो नहीं रहेगा, ऑड लॉट भी नहीं रहेगा, ओपन पोजीशन है, ऑफर रह सकता है, तो ऑफर इज योर आंसर, है ना। ऑफर इज नथिंग बट, है ना, मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं, मतलब आई एम विलिंग टू सेल एट दैट प्राइस। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन प्राइस अ सिक्योरिटी कैन हैव कॉल्ड? इट इज नथिंग बट टिक, है ना। टिक कहते हैं मिनिमम चेंज। ठीक है। अभी जो अपने कैंडल स्टिक आते हैं, ये कितने 3 मिनट का कैंडल स्टिक रहता है, तो एक एक कैंडल स्टिक को टिक भी कह सकते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट इज पेड बाय टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस किसके लिए रहता है? डेथ के लिए रहता है ना। टर्म इंश्योरेंस अगर आपने लिया है, सो यू हैव डेथ बेनिफिट्स इन देम। ठीक है। नेक्स्ट, स्विसी इज अ जार्गन फॉर स्विस फ्रैंक, है ना। स्विस फ्रैंक का जार्गन क्या है? स्विसी। सुशी बॉन्ड्स आर इशूड बाय व्हाट कंट्री? सुशी बॉन्ड्स, अभी देखो सुशी ये नाम, एक तो जापान कोरिया ऐसा ही आएगा, है ना, तो जर्मनी यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएगा, कोरिया भी नहीं है आंसर, जापान, है ना। जापान इश्यूज सुशी बॉन्ड्स। ठीक है। कॉस्ट दैट हैव बीन इंकर्ड एंड कांट बी चेंज्ड आर कॉल्ड व्हाट? तो दे आर नॉट टैक्स्ड, है ना। मतलब ऐसा कुछ तो भी खर्चा जो अपन ने कर दिया है और अभी उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है? टैक्स नहीं रहेगा, वेटेड नहीं रहेगा, संक कॉस्ट रहेगा, संक कॉस्ट रहेगा। ठीक है ना। मतलब अभी मैंने सपोज करो कि बुक्स प्रिंट करा ली एंड वो बिक ही नहीं रही, है ना। मैंने 100 बुक्स प्रिंट करा लिए, मेरा 10,000 रुपए का खर्चा हो गया, अभी मेरे से वो बिक ही नहीं रही, तो वो मेरा क्या हो गया? संक कॉस्ट हो गया ना। What is another name of a firm that operates in more than one country? तो एमएनसी बोलते हैं ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनल कॉर्पोरेशन, मल्टी करेंसी कॉर्पोरेशन या डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन नहीं कही। ठीक है। नेक्स्ट, ऑड लॉट रेफर्स टू व्हाट? ऑड लॉट रेफर्स टू हाउ मेनी शेयर्स ऑफ स्टॉक? इट इज नथिंग बट लेस देन 100 शेयर्स, है ना। एन ऑड लॉट रेफर्स टू लेस देन 100 शेयर्स। What is the period at the beginning of the trading session called? What is the period at the beginning of the trading session called? The close and close out तो नहीं रहेगा, either it is open bidding or the opening, है ना। ओपन बिडिंग, देखो अभी शेयर मार्केट के अगर आप देखोगे, फ्लक्चुएशंस 9 बजे से शुरू हो जाते हैं, है ना, जबकि मार्केट खुलता है 9:15 बजे। सो जो 9 से 9:15 का टाइम है, दैट इज द ओपनिंग। ठीक है। What is the payment of financial obligation that is uh, what is the payment of financial obligation earlier than it is expected or required? है ना, मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो जल्दी पे कर दिया अपन ने, वी हैव पेड इट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड, तो इट कैन बी लैग तो नहीं हो सकता, लीकेज भी नहीं हो सकता, लैग रिस्पॉन्स भी नहीं हो सकता, हैज टू बी लीड। ठीक है।
What is the payment period stated in a lease contract? What is the payment period stated in a lease contract? It is nothing but a lease rate. है ना, लीज कॉन्ट्रैक्ट में लीज एग्रीमेंट रहता है, उसमें पेमेंट पीरियड इज नथिंग बट द लीज रेट. ठीक है. व्हाट इज लीगल प्रोसीडिंग फॉर लिक्विडेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस? लीगल प्रोसीडिंग फॉर लिक्विडेटिंग. लिक्विडेटिंग मतलब मर्जर नहीं रहेगा, एक्विजिशन नहीं रहेगा, टैक्स शेल्टर नहीं रहेगा, बैंक्रप्सी ही रहेगी ना, है ना. लिक्विडेट कर दे रहे भाई, उसके एसेट्स जो सब है वो लिक्विडेट कर दे रहे, दैट इज लीगल बैंक्रप्सी. ठीक है. What type of business would Procter and Gamble or Kraft be categorized as? तो Procter and Gamble मतलब P&G, ये शैम्पू गिम्पू बेचते हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो नहीं, यूटिलिटीज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं है, कंज्यूमर प्रोडक्ट ग्रुप्स है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना ये P&G. ठीक है ना. The tendency toward a worldwide investment environment is termed as worldwide investment environment is termed as globalization. Definitely not mutual fund, commercial underwriting या Freddle Mac अपने को पता नहीं है ना. तो you will be confused between A and C, है ना. A अपने को थोड़ा सा फैंसी वर्ड लगता है तो अपन शायद A मार्क कर देंगे, बट देन समझो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट और एनवायरमेंट मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन करना है. Profit earned before expenses are taken into consideration is what type of profit? It is nothing but gross profit, है ना. थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से दे हैव अ लिटिल बिट एज ओवर दिस सेक्शन, ये उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बैलेंस शीट वगैरह कैसे करना है, उसमें क्या क्या एंट्रीज रहती है, ये आपको पता रहता है. ठीक है. स्लाइड 5. व्हाट इज द 3 letter term for payment that is later than expected or required, है ना. later than expected or required मतलब लैग कर दिया ना हमने, लैग लॉग तो नहीं रहेगा, लैग कर दिया ऐसा ही रहेगा. A corporation that owns enough voting stock in another firm to control management becomes its what? Grandfather clause नहीं, merger, stock of record नहीं, holding company, है ना. A corporation मतलब what is the holding company of Citibank? It is City Corporation, है ना. It is the holding company because they have enough stocks so that they have voting rights as well. ठीक है. In the US, whose rules govern the keeping of corporate tax books, है ना. IRS, है ना, जैसे इंडिया में से भी वहां पे इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम. ठीक है. Countries with lower risk are known as, lower taxes are known as what? They are tax havens, है ना. अभी टैक्स हेवन्स आर दोज कंट्रीज जहाँ पे टैक्सेस बहुत लो. सिंगापुर इज अ टैक्स हेवन. तुमने देखा होगा मेनी इंडियन कंट्री कंपनीज आर दे आर रजिस्टर्ड इन सिंगापुर क्योंकि दे आर टैक्स हेवन्स. यहाँ पे आई गेस फ्लिपकार्ट इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो शायद सिंगापुर में, आई एम नॉट कंफर्म, आई एम नॉट श्योर, बट आप कंफर्म कर सकते हो. तो सिंगापुर में कैसा है कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो भी टैक्स है वो 30% डायरेक्ट, है ना. इन सिंगापुर इट इज ओनली 17% फ्लैट. So that is why it is a tax haven. ठीक है. Your taxable income in is your gross income minus what? Taxable income is your gross income minus deductions, है ना. ग्रॉस इनकम मतलब मेरा सपोज करो 5 करोड़ का ग्रॉस इनकम हुआ, उसमें से मेरे डिडक्शंस हुए 4.5 करोड़ के, तो मेरा टैक्सेबल इनकम 50 लाख ही रहेगा. If you tender an offer, you do what? If you tender an offer, you make a very low offer भी नहीं रहेगा, withdraw an offer, add restriction to an offer भी नहीं रहेगा, you just make an offer. To tender an offer means you make an offer, है ना. गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं मतलब गवर्नमेंट इज मेकिंग एन ऑफर, है ना. वेरी लो ऑफर, वेरी हाई ऑफर वगैरह की बात नहीं चलती. ठीक है. When a company files Chapter 11, it is doing what? It is declaring bankruptcy. ठीक है ना. मतलब
कोई कंपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रही है तो चैप्टर मतलब फिर हम क्या कह सकते हैं कि दैट कंपनी इज फाइलिंग चैप्टर 11, है ना। आदित्य सर नहीं होते तो तर्कशास्त्र भी बैंकरप्सी चैप्टर 11 फाइल कर रहा होता है कि नहीं। इफ यू रिटायर अ डेट, व्हाट हैव यू डन? यू केप्ट इट फॉर 64 years, नहीं, रिफ्यूज टू पे, नहीं, पेड इट ऑफ समहाउ, पुट इट ऑन ऑटो पेमेंट, नहीं, ठीक है ना। सो टू रिटायर अ डेट मीन्स टू पे इट ऑफ, टू रिटायर अ डेट मीन्स टू पे इट ऑफ, ठीक है। अ कंपनी और डिवीजन दैट जनरेट्स अ स्टेडी एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो इज कॉल्ड व्हाट? इट इज अ कैश काउ, है ना, ये तो आपने सुना भी होगा, है ना, दैट इज माय कैश काउ, है ना, आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस बट दिस वन इज माय कैश काउ, है ना, बिकॉज यहाँ से मेरा स्टेडी एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम आता है, ठीक है। इफ अ कंपनी फ्रॉम operates their accounting from July 1st to 30th of June, that is called their what? That is called their fiscal year. Okay, that is called their fiscal year. ठीक है, that is called their fiscal year. हाँ, ठीक है। कैसे? अभी 1 जन से 31 दिसंबर इज योर कैलेंडर ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये आपका फाइनेंशियल ईयर, एंड 1 जुलाई से 30 जून इज योर फिजिकल ईयर, ठीक है। इन बिजनेस वर्ल्ड द टर्म ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी इजी। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन प्राइस मूवमेंट मूव्स अपोजिट टू द प्रीवियस, है ना। तो इट मे नॉट बी बैड न्यूज ऑलवेज, इट मे नॉट बी प्रॉफिट और लॉस, इट इज रिट्रेसमेंट, है ना। मतलब अपोजिट, पहले ऊपर गया बाद में नीचे आया तो इट इज रिट्रेसमेंट, या फिर पहले नीचे गया बाद में ऊपर गया, इट इज रिट्रेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटेल क्रेडिट यूज्ड फॉर बाय कंज्यूमर्स? व्हाट इज रिटेल क्रेडिट यूज्ड फॉर बाय कंज्यूमर्स? इट इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, हो सकता है टू, सो दैट दे कैन हैव अ गोल्ड कार्ड, नहीं, टू कीप बैंक्स इन बिजनेस, नहीं, टू मेक देम, है ना, टू कीप बैंक्स इन बिजनेस, ये रिटेल क्रेडिट कंज्यूमर इसके लिए नहीं यूज करते, टू मेक देम गो डीपर इन डेट ये भी नहीं, ये वाला। What does a company pay to its shareholder when it is showing a profit? So when it is showing a profit, they pay a dividend, है ना। When है ना, अभी कोई कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो क्या करती है, एक शेयर के पीछे 2 रुपया डिविडेंड दिया, तो तुम्हारे पास 1000 शेयर है तो तुमको 2000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स, है ना। इन्फोसिस इज मतलब इट हैज बीन शेयरिंग डिविडेंड्स सिंस डेकेड्स, ठीक है ना, वो हमेशा अपना प्रॉफिट शेयर करती है। अभी डिविडेंड पे करने के बाद वो कंपनी का शेयर गिर जाता है, ऐसा क्यों, ये बताओ अभी मुझे, ये आपका होमवर्क, ठीक है। REIT डील्स इन इन्वेस्टमेंट विथ इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? दे डील विथ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ठीक है। REIT डील्स इन इन्वेस्टमेंट विथ रियल एस्टेट, है ना। REIT का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स कहते हैं इनको। 3-4 months ago when I last checked there were 3 REITs in India। तो रीट्स का काम क्या रहता है? अभी देखो, आप तो बहुत बड़े लोग, आप सीधा 1 करोड़ 2 करोड़ का घर ले लोगे, है ना, बट मेरे जैसे गरीब लोग जो रहेंगे, जिनको पता है कि यार रियल एस्टेट में अच्छा खासा रिटर्न्स है, रियल एस्टेट में अच्छा खासा रिटर्न्स है, बट मेरे पास 1 करोड़ का घर लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या है, ये सबसे पैसा जमा करके ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वो घर खरीदते हैं या फिर वो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है। तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन रीट इज 10,000 रुपीज, तुम 10,000 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। अभी 10,000 में आई विल बी ओनर और परसेंटेज ओनर of one of the properties in which the real estate is in which the REIT is investing,
ठीक है ना, तो ये काम है रीड। ठीक है, फॉर विच ऑफ दीज इज सीईओ एक्रोनिम? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एकदम इजी। व्हाट इज द रिटर्न पेड ऑन सेविंग्स डिपॉजिट कॉल्ड? सेविंग डिपॉजिट पे आपको कमीशन, कैपिटल गेन टैक्स, इंटरेस्ट मिलता है ना? द बैंक इज पेइंग यू द सेविंग सेविंग डिपॉजिट का जो रिटर्न रहते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। वेयर आर जीएल अकाउंट्स फाउंड? जीएल अकाउंट्स आर फाउंड इन जनरल लेजर, है ना? जीएल का फुल फॉर्म ही जनरल लेजर। ठीक है, नेक्स्ट, द समुराई मार्केट इज लोकेटेड वेयर? अभी आपने देखा होगा कि यार सुशी बॉन्ड ये जापान में था। सुशी बॉन्ड अपन ने देखा था स्लाइड 1 या 2 में देखा था कुछ तो भी, इट वाज इन जापान। अभी ये समुराई समुराई भी ऐसे ही रहेगा कुछ, सिंगापुर, जापान, कोरिया, है ना? तो अभी समुराई मार्केट इज लोकेटेड वेयर? इट इज डेफिनेटली नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट रशिया, इट इज नॉट इन सिंगापुर एज वेल, इट इज इन जापान। ठीक है ना, समुराई मार्केट। What term refers to the scrap value of plant and equipment? It is nothing but salvage value. है ना? Salvage value means the scrap value of plant and equipment. ध्यान में रखो, salvage value means scrap value of plant and equipment. What type of loan is issued during interim between one financial arrangement and other? है ना? What one financial arrangement and other के बीच में जो लोन दिया जाता है, दैट इज नथिंग बट ब्रिज लोन, है ना? वन फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड अनदर फाइनेंशियल अरेंजमेंट के बीच में जो लोन दिया जाता है, दैट इज योर ब्रिज लोन। A financial plan for upcoming year is called what kind of plan? It is a short term plan. Anything less than 1 year is short term, है ना? 1 year से छोटा जो है वो शॉर्ट टर्म, एंड 1 year से बड़ा जो है वो लॉन्ग टर्म। ठीक है, what does the abbreviation INC dot stand for? It is nothing but incorporated, है ना? Included in company innovation capital नहीं रहेगा, it is incorporated। ठीक है, payments that come into a company falls into what category? It is definitely accounts receivable, है ना? Accounts payable तो नहीं रहेगा, म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा, शेयर होल्डर्स नहीं रहेगा। Eliminating the options they help you a lot, है ना? पेमेंट कमिंग इनटू द कंपनी, वो क्या है? पेमेंट रिसीव कर रहा है, दैट इज पेमेंट रिसीवेबल। इन बिजनेस व्हाट डज B2B स्टैंड फॉर? B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस। ये एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, इतना बेसिक। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस resulting in a summary of assets and liabilities is called what? A statement of financial transactions resulting in summary of assets and liabilities is called a balance sheet, है ना? बैलेंस शीट में एक एसेट कॉलम रहता है, एक लाइबिलिटीज कॉलम रहता है, फिर वो अपन मैच करने की कोशिश करते हैं, है ना? Those who are from commerce background, they must be aware of it. Those who are not from commerce background, they will be doing it in first year of your M. You guys will be doing it in first year of your MBA. ठीक है, what determines a shareholders equity? Shareholders equity, how active trading is नहीं, weighted capital शायद, total funds in bank नहीं, assets minus liabilities, definitely assets minus liabilities। shareholder की equity is nothing but his assets minus his liabilities। ठीक है, what does stock out means? So you owe more taxes, you are now broke नहीं, your cows broke the, ये भी गलत। रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री, है ना? स्टॉक आउट मतलब स्टॉक खत्म हो गया, मतलब क्या? यू आर रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री, है ना? स्टॉक अबाउट टू क्लोज, अबाउट टू गेट ओवर मींस कुछ ही आइटम्स बचे हैं। स्टॉक आउट मतलब कि आपके पूरे आइटम्स खत्म हो चुके। ठीक है, व्हाट नेम इज यूज्ड फॉर समवन हु होल्ड्स अ शेयर इन अ फर्म? स्टॉक होल्डर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, टिकर नहीं, लॉस प्रोटेक्शन मॉडरेटर भी नहीं। स्टॉक होल्डर is the one who holds share in a fund. What is stock market? Stock market is nothing but auction house for नहीं, cattle auction, market for trading equities, है ना?
टिकर टेप परेड भी नहीं, है ना। तो आपको पता रहना चाहिए कि यार ऑप्शन भी देखोगे ना, ऐसे कॉमन सेंस से आधे क्वेश्चन, 20 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी पीपल ओन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ये क्या मतलब पूछने जैसा सवाल है क्या? देयर इज, वैसे भी प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन की पास रहती है, यहाँ पे ये वर्ड भी दे दिया है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब वो तो वन ही रहेगा ना। What is currency that's expected to drop in value in comparison to others? तो सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी तो नहीं रहेगी, शार्प करेंसी, प्रॉफिटेबल करेंसी नहीं रहेगी, इट इज अ सॉफ्ट करेंसी, इट इज वेरी फ्लक्चुएटिंग, है ना, और इट इज वेरी मच वल्नरेबल टू मार्केट न्यूज एंड मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज नोन एज व्हाट? जनरल डायरेक्शन, it is not secure market, है ना। जनरल डायरेक्शन कैन बी, it can be going up or it can be going down, so it is nothing but the trend of the market, है ना। मार्केट ट्रेंड कैसा है हम पूछते हैं, तो दैट इज ट्रेंड ऑफ द मार्केट। द एक्सचेंज इन सिंगापुर इज नोन एज व्हाट? सीमेक्स, सिंगापुर इंटरनल या इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज, है ना। सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज होगा या फिर सिंगापुर इंटरनल मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है। डाउ जोन्स रिपोर्ट्स व्हाट मैथमेटिकल कंपोनेंट? इट रिपोर्ट्स द एवरेज, है ना। डाउ जोन्स क्या रिपोर्ट करता है? इट रिपोर्ट्स द एवरेज, ठीक है। व्हाट इज द डेली नंबर ऑफ शेयर्स? व्हाट इज द डेली नंबर ऑफ शेयर्स of security that change hands between a buyer and a seller called? It is nothing but the volume. It is nothing but the volume. Okay, it is the volume of shares that has been uh, changing hands in the market. Now, in accounting terms, how long is long term considered to be? In accounting terms, how long is long term considered to be? 1 year or more, है ना। Long term is considered to be 1 year or more. In financial terms, what is CD? CD is nothing but certificate of deposit. CD is nothing but certificate of deposit. ठीक है. The cost that fluctuates is known as what? Variable cost ही रहेगा. Underwrite cost नहीं, fixed cost नहीं, annuity नहीं. It is a variable cost. Buying and selling securities is called what? Buying and selling securities is called कैपिटल गेन, तो मतलब प्रॉफिट हुआ तो ही ना. इट इज नथिंग बट ट्रेडिंग. बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इज नथिंग बट ट्रेडिंग, है ना. फाइनेंशियल फन के लिए तुम बाय एंड सेल सिक्योरिटी नहीं करते, अगर करते हो तो गलत कर रहे हो. एंड देन प्रमोशंस के लिए भी आप बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज नहीं करते. वेयर ऑन द ट्रेडिंग फ्लोर डज द ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज टेक प्लेस? They take, where on the trading floor does the trading of commodities take place? They take place in the pit, है ना. ट्रेडिंग फ्लोर में ट्रेडिंग जो होता है, इट इज, उसको कहते क्या है? पिट. ट्रेड क्रेडिट इज गिवन टू अ फर्म फॉर व्हाट पर्पस? ट्रेड क्रेडिट एक तो आपको परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, सेटल डेट्स के लिए नहीं दिया जाता है कभी भी. ट्रेड क्रेडिट, है ना. ट्रेड क्रेडिट मतलब आप नाम नहीं समझो, ट्रेड ये वर्ड आया है उसमें, मतलब वो डेट सेटल करने के लिए तो नहीं रहेगा. हेल्प यू फाइंड अ जॉब तो डेफिनेटली नहीं. एडवर्टाइज फॉर यू भी नहीं. इट इज गोइंग टू हेल्प यू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना. दिस इज हाउ ट्रेड क्रेडिट ऑपरेट्स और इट फंक्शंस, ठीक है. सो दीज वर ऑल द बिजनेस टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी कुड कम अक्रॉस, एंड बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है. नाउ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग different topics, and 2-3 topics we'll be understanding what do we understand by those terminologies, are their uses and all, and उसके हिसाब से हम आगे बढ़े. Total we are going to cover the syllabus in 10 sessions, which should be more than enough to score. I mean, 10 सेशन में अपना टारगेट ये है कि अपने को 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, है ना. दिस इज द टारगेट which I feel we will be able to achieve it.
ठीक है. So you can connect with us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 groups. Thank you so much.